પહેલી વાર બધા જ માણસ એવું જરૂરી નથી કે પહેલી વાર આખું બોક્સ આપણું લઈ જ લે 95 નું. તો સર મેડમે મને કીધું કે તમે આ રીતે પણ સેલ કરી શકો. એટલે મેં 10 પાઉચ આપવાનું શરૂ કર્યું લોકોને કે તમે 10 દિવસ તો પીવો. ને મને ખબર કે પ્રોડક્ટમાં એટલો બધો દમ છે કારણ કે સેલ લેવલથી કામ કરે છે. એટલે મને વિશ્વાસ કે બીજી વાર ચોક્કસ માંગશે. નહીં માંગશે તો 10 દિવસમાં આપણે જઈને પૂછીએ કે કેવું લાગ્યું, તો જવાબ સારું લાગ્યું એવો જ હશે. અને 10 દિવસ પૂરા થાય એટલે હું ચેતના મેડમને લઈને એમના ઘરે પહોંચતી. અને પછી 4 મહિના આપવાનું જ્યારે 95 હોય ત્યારે હું મેડમ સાથે જ જતી. અને મને વિશ્વાસ કે મેડમ સાથે આવે ને 95 નહીં જાય એવું તો બની જ નહીં શકે. અને દરેક વ્યક્તિને અમે જે 95 આપી છે સર, દરેકને 4-4 મહિનાના કોર્સ પૂરા કરાવ્યા છે. થાઇરોઇડમાં આપી છે, માઇગ્રેનમાં આપી છે, સોરિયાસિસ માટે આપી છે, કોઈને અશક્તિ લાગતી હોય. અને અમારા ગામડામાં તો લીવર માટેના પ્રોબ્લેમ ઘણા થાય કારણ કે ડ્રિંક્સની આદત હોય લોકોને. તો એવા કેસમાં પણ અમે 95 આપીને રિઝલ્ટ લીધું છે. અને અત્યારે સર આ 3 દિવસ પહેલાની જ એક વાત છે કે 8 વાગ્યા સુધી અમે ફિલ્ડમાં હતા. એક ગામડામાં ગયા હતા નવસારીથી 1 કલાક દૂર. ત્યાં સર ફોન આવ્યો, કોઈના રેફરન્સથી કોઈ મારો નંબર આપ્યો હશે. એમણે મને ફોન પર કીધું કે બેન તમારી પાસે જે જ્યુસ છે તે મને જોઈએ. તો મેં કીધું અત્યારે 8 વાગ્યા છે, હવે મારે ઘરે જવાનું છે, તો હું કાલે સવારે આપી જઈશ. તો પેલા બેને કીધું કે ના અત્યારે તમારે આપવું પડશે કારણ કે મારા હસબન્ડની તબિયત ખૂબ જ ખરાબ છે. હવે શું થયું એ બધું એમણે ફોન પર કઈ કીધું નહીં, ખાલી મને એડ્રેસ આપ્યું. પછી મેં મેડમને વાત કરી, ચેતના મેડમને. 8 વાગ્યા તો હું નવસારી આવી. 8:30 વાગ્યા પછી મેડમ સાથે વાત કરીને મેડમને કીધું કે તમારે આવવું પડશે. તો મેડમે કીધું ચાલો. અમે 9:30 એમના ઘરે પહોંચ્યા. 9:30 પહોંચ્યા, પેલા ભાઈનો રિપોર્ટ જોયો. સર મેડમે રિપોર્ટ જોયો તો 70% લીવર એમનું ડેમેજ થઈ ચૂક્યું હતું. અને એ ભાઈ પાણી પી તો પણ વોમિટ થઈ જાય, કંઈ પણ ખાય તો પણ વોમિટ થઈ જાય, અને દવા પી તો પણ વોમિટ થી બધું નીકળી જાય. એટલે એમના શરીરમાં કંઈ પણ પ્રવાહી પણ જઈ ન શકે, લીંબુ શરબત પણ પી શકતા ન હતા, એવી પરિસ્થિતિ હતી. અને ડોક્ટર પાસેથી રિપોર્ટ કરાવીને બધી દવા પણ લાવ્યા જ હતા તેઓ. મેડમે રિપોર્ટ જોયા અને પછી મેડમ એમને 95 લીવર ગેન, પ્રોબાયોટિક્સ અને ડેલી ડિટોક્સ સજેશન કર્યું અને એમણે લીધી પણ ખરી. ત્યારે સર મને થયું કે ખરેખર સ્ટોકનું મહત્વ ઘણું છે. તમે કાયમ અમને કહો ને કે સ્ટોક રાખો, સ્ટોક રાખો, કારણ કે રાત્રે કદાચ સ્ટોક ન હોય તો ક્યાં લેવા જઈએ. એટલે આટલી દવા આપી. બીજા દિવસે બેનને મેં ફોન કર્યો કે ભાઈને 95 આપી તમે, પીધી, સારું છે, વોમિટ થઈ? તો બેને કીધું કે ના વોમિટ નથી થઈ, ખોરાક પણ લે છે, ખાય પણ છે અને 95 પણ પીધી છે અને એમને સારું છે. એટલે આવા તો સર ઘણા રિઝલ્ટ મેં લીધા છે અમારા કાંઠા વિસ્તારમાં. એ સિવાય સર માઇગ્રેનનો પ્રોબ્લેમ જે ડોક્ટરની દવાથી પણ ન સારું થાય, એ પણ 95 થી સારું કર્યું છે. અને દરેક વખતે વિઝિટમાં હું ચેતના મેડમને લઈ જ આવું છું કારણ કે સર મને એક ખોટી ટેવ છે કે હું રસ્તો ભૂલી જાઉં જલ્દી. એટલે લઈ તો હું જાઉં, મેડમને એડ્રેસ આપી દઉં, ઘર સુધી પહોંચાડવાનું કામ મેડમનું હોય છે. એટલે હું કહું છું કે હું અહીં સુધી જે જીતી છું અને અહીં સુધી જે પહોંચી શકી છું, એનો યશ હું માત્ર ને માત્ર ચેતના મેડમને આપવા માંગુ છું. અને સર આ 95 એક આપણી પ્રોડક્ટ જ એવી છે કે એ દવા નથી, એક જ્યુસ છે. અને આ જ લોકોને હું સમજાવવા માંગુ છું. અને તમને સર ખબર જ છે કે અત્યારે મારા હસબન્ડ પર પાકિસ્તાની જેલમાં છે, એટલે મારા ઉપર આખા ઘરની જવાબદારી પ્લસ છોકરાઓને ભણાવવાની ફીસનો ખર્ચ, એ સિવાય પ્લસ મારી હોમ લોન અને બીજી ઘણી બધી લોન છે. એટલે મારું જે પર્સનલ જે કંઈ છે, ચેતના મેડમ અને જયેન્દ્ર સર સારી રીતે જાણે છે અને એ રીતે સર ડગલે ને પગલે મને મદદ કરે છે. અને મને પણ એક એવી ટેવ પડી ગઈ છે. સર અવાજ આવે છે મારો? આવે છે. હા આવે છે સર, બેન, કન્ટિન્યુ આવે છે. હવે સર મને એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે સવારે જ્યારે હું ફિલ્ડમાં નીકળું છું ત્યારે હું ચેતના મેડમ કે જયેન્દ્ર સરના ઘરે જાઉં, 10 મિનિટ એ લોકો પાસેથી ગાઈડન્સ મેળવું છું કે હું આ એરિયામાં જાઉં છું તો મારે કેવી રીતે વાત કરવી જોઈએ. અને વધારે ફોકસ મારો 95 પર જ હોય છે. અને આજે તો મને એવી ટેવ પડી ગઈ કે જે દિવસે 95 ન જાય ને તે દિવસે ભૂખ પણ લાગતી નથી મને, કારણ કે હું છેલ્લે 10 પાઉચ પર આપું છું.
અને બધા લે પણ છે, ટ્રાય કરે છે, સારું પણ લાગે છે. અને પછી મેડમને સાથે જઈને એમને સમજાવીને પછી એમનો કોર્સ પણ અમે પૂરો કરાવીએ છીએ. એટલે હું બધાને જ કહેવા માંગુ છું કે આટલા સરસ ગ્રેટ લીડર જો આપણને મળ્યા હોત તો પછી આપણે એમનો લાભ ઉઠાવતા પણ આપણને આવડવું જોઈએ. કારણ કે જોઈએ એટલું ગાઈડન્સ એમની પાસેથી મેળવી શકાય. આપણને જરૂર છે એટલે આપણે જવું પડે ગાઈડન્સ મેળવવા માટે. અને એ તકનો હું પૂરેપૂરો સર ઉપયોગ કરી રહી છું. એના કારણે જ આટલા ઓછા સમયમાં પણ હું આટલા જલ્દી આ ડીટીસી રેન્ક પર આજે પહોંચી છું. અને ગુણ 7 સુધી સર હું એસટીસી બનીને જ આવીશ એવો મારો સંકલ્પ છે. કારણ કે જ્યારે મેં ડીટીસી કમ્પ્લીટ કર્યું અને બીજા દિવસે ચેતના મેડમ સાથે મળી તો મેડમે મને બીજા દિવસે એસટીસી માટેનું જ પ્લાનિંગ આપ્યું. અને તે દિવસથી લઈને પહેલેથી મારું પ્લાનિંગ જેટીસી ને એસટીસી માટેનું જ હતું. અને એસટીસી માટે જ હું પ્રયત્ન કરી રહી છું. અને 95 ના એટલા બધા રિઝલ્ટો મેં લીધા છે. અને દરેક રિઝલ્ટમાં દરેક વિઝિટમાં 1 to 1 માટે હું ચેતના મેડમને સાથે લઈ જાઉં છું. મેડમ કોઈ દિવસ ના પણ પાડતા નથી. રાત્રે ગમે એટલો સમય થયો હોય કે પછી ગમે એવી સિઝન હોય વરસાદમાં પણ અમે ગયા છે. ओके, बहुत सरस विकासिनी बेन, आपने बहुत ही अच्छा, आपकी बात में आपने जो बताया कि आपने कैसे स्टार्ट किया और कब आपको स्पार्क हुआ, तो आपने बताया कि सापुतारा में आपको હા સર. लगा कि बिजनेस, जैसे आपने बताया कि जबरदस्ती से आपको सापुतारा में पहुंचाया गया, थोड़ा जबरदस्ती करके आपको वहां पर जाने के लिए मजबूर किया। वहां जाकर के आपको एक विजन मिला, वाई क्लियर हुआ, इसके बाद आपने काम शुरू किया। तो मैं कुछ सवाल आपको पूछना चाहता हूं मैडम। तो सबसे पहले आपका હા સર. आपका सबसे पहले आपका एजुकेशन कितना है, आप कितने तक पढ़ी लिखी है मैडम? બીકોમ બીએ છું સર. बीकॉम बीए, क्या बात है, हाँ। बहुत बढ़िया। तो बीकॉम बीए करने के बाद भी ये काम करने के लिए आपको कौन सी चीज जिसने आपको मोटिवेट किया? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई, जैसे कि आप टीचर भी है, जैसे आपने बताया कि आप टीचर थी और ट्यूशन क्लास चला रही थी, ये दो काम तो आप कर ही रही थी, तो तीसरा माई लाइफ का काम आपने शुरू किया। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी जॉब है, हम टीचर है या हम अच्छी खासी इनकम है हमारी, जॉब करते हैं, तो हमें माई लाइफ क्यों करना चाहिए? हमें माई लाइफ के बारे में लोग बोलते नहीं, सोचते भी नहीं है। तो आपका ये दोनों काम होने के बावजूद, ये दोनों काम होते हुए भी आपने हमने ये माई लाइफ का काम शुरू किया, तो आपको ऐसा कौन सा चीज था जो आपको टच कर गया कि नहीं, मुझे यही काम करना है और ज्यादा करना है, इधर भी यहाँ पर मुझे ज्यादा फोकस करना है, यहाँ बड़ा काम करना है, ऐसा क्या था? हेलो, અવાજ આવે છે आपका સર? चलो, हाँ, હવે આવે છે। આવે છે. હા. મેં આગળ સર કીધું તેમ કે મારા હસબન્ડ અત્યારે પાકિસ્તાની જેલમાં છે. અને એ સમયે અચાનક અમારી લાઈફમાં આ બનાવ બન્યો. અને ભલે હું બીકોમ બીએડ હતી, હું જોબ પણ કરતી હતી અને ટ્યુશન ક્લાસીસ ચલાવતી હતી. પણ સર અમારી જે બોટ હતી, ફિશિંગ બોટ, જે મચ્છીમારી કરવા માટે ગયા હતા, એ બોટ પણ સર સાથે પાકિસ્તાન લઈ ગયા હતા. એટલે એક રીતે જોવા જઈએ તો અમારી પાસે કઈ આધાર જ ન હતો. અને આખા ઘરની જવાબદારી પ્લસ સર બધી લોન લીધેલી, એ છોકરાને ભણાવવાનું, આ બધી જવાબદારી મારા પર આવી ગઈ. હું જોબ તો કરતી જ હતી અને જોબ પણ મારી ઘર આંગળે જ હતી સર. અને ટ્યુશન ક્લાસ પણ ચાલુ જ હતા. પરંતુ મેડમે અને જયેન્દ્ર સરે મને સમજાવ્યું તે રીતે મેં પણ વિચાર્યું સર કે 8 કલાક જોબ કરીને મારાથી કઈ થવાનું નથી. કારણ કે એમાં માત્ર રોટલો ખાવાનો હોય તો થાય. બીજું મારે જે કઈ કરવાનું છે, લોન ભરવાની છે, છોકરાઓને ભણાવવાના છે, ઘરની જવાબદારી છે, એ બધું જ મારે એકલીએ જ મેન્ટેન કરવાનું હતું. તો પછી મને થયું કે 8 કલાક જોબમાં નાખવા એના કરતા હું રોજ 4 કલાક ફિલ્ડમાં જાઉં તો પણ એટલું તો હું મેળવી લઈશ. કારણ કે આખું પ્લાનિંગ મને જયેન્દ્ર સર અને મેડમે બતાવ્યું હતું કેલ્ક્યુલેટ કરીને. અને હું જાણી ગઈ હતી કે મારે જે કંઈક લોન ભરવી છે, જે કંઈક મારી જવાબદારી છે, એ બધું જ જો મારે પૂરું કરવું હોય તો માય લાઈફ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી.
8 કલાક જોબમાં નાખીને પણ ફિક્સ પગાર મળતો નહોતો, કારણ કે સર રજાના પૈસા કપાઈ જતા હતા. Okay. ટાઈમ ઘણો જતો હતો, સામે ઇન્કમ ઓછી મળતી. એટલે આ બધું કેલ્ક્યુલેટ કરીને મેં પણ ઘણો વિચાર કર્યો અને પછી મેં જોબ છોડી. અને આજે પણ હું ડબલ લોયલ્ટી લઈ રહી છું. જ્યારથી સિલ્વર થઈ, લોયલ્ટી એચીવર બની, ત્યારથી એક પણ મહિનો મેં લોયલ્ટી વિના છોડ્યો નથી. દરેક મહિને હું લોયલ્ટી લઉં છું, કારણ કે મને આગળથી પ્લાનિંગ જ સર એવું આપવામાં આવ્યું છે. અને જ્યારે આજે આ સેશનની વાત કરું તો મને ચેતના મેડમે ફોન કર્યો, જયેન્દ્ર સર અને મેડમે, ત્યારે સર હું ના ન કહી શકી, કારણ કે કહેવાય ને સર કે જેવા વડ તેવા ટેટા, એટલે જેવા લીડર હોય ને સર તેવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હોય. એટલે આ અમને એમની પાસેથી સંસ્કારમાં વારસામાં મળ્યું છે. राइट राइट राइट, बहुत सरस। तो मैडम, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड यहाँ पर नहीं है अभी, वो आपकी बोट जो थी वो कोई बॉर्डर के आसपास चली गई और वहाँ पर पाकिस्तान वालों ने वो वहाँ पर लेकर के गए, और आज भी आपके हस्बैंड यहाँ पर नहीं है। तो ये घटना कब घटी थी, मतलब कितने साल हुए ये बात को कि आपके हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, वो पाकिस्तान में है? સર 4 વર્ષ થઈ ગયા. 4 साल हो गए आपके साथ હા, वो नहीं। 4 વર્ષ થઈ. હા तो जब आपको पता चला कि ऐसा हुआ है, હા સર. जब, तो मतलब आपको फिर आपका जो इनकम का सोर्स है अभी वो एक चला गया, साथ में आपको फैमिली का जिम्मेदारी, जैसे आपने बताया कि बच्चों की जिम्मेदारी, घर चलाना था, तो आपको शुरू में मतलब क्या फील हुआ, कैसे कैसे आप करोगे, क्या आपके ऊपर एक जो एक टेंशन आया? क्योंकि आज कैसा है ना मैडम कि हमारे टीम के अंदर, हमारे नेटवर्क में, हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं माई लाइफ कैसे करूं। बहुत सारे बोलते हैं कि मेरा इनकम ठीक ठाक है, मेरे हस्बैंड का इनकम आ रहा है, मैं क्यों करूं, या फिर छोटे छोटे बहानों में घुस जाते हैं। तो आप अकेली होने के बावजूद आपके सर पे बच्चों की जिम्मेदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी, और हस्बैंड कब आएंगे वो भी टेंशन में, नहीं टेंशन है, मतलब वो भी मालूम नहीं है कब आएंगे वो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको शुरू में कैसा फील हुआ, फिर वो सिचुएशन में से आप कैसे बाहर निकली, आपने वो कब मन बनाया कि अब जो भी सिचुएशन है मुझे हैंडल करना है और बच्चों को आगे लेके जाना है? तो थोड़ा उसी के ऊपर हम थोड़ा बात करोगे आप, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो तकलीफ है, मैं दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे दुखी आत्मा हूं मैं, ऐसा हर किसी को लगता है कि भगवान ने मुझे ही अकेले को इतना सारा दुख दे दिया, इतनी सारी तकलीफ दे दी, जबकि मुझे लग रहा है कि आपकी तकलीफ, आपके प्रॉब्लम के सामने किसी का प्रॉब्लम बड़ा नहीं हो सकता। तो आप कैसे वो सिचुएशन में से बाहर निकले, शुरू में आपको क्या लगा? अगर आप थोड़ा बता सके इसी के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को इसमें से कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो लोग भी अपने फ्रस्ट्रेशन में से बाहर आ सकते। સર જ્યારે આ ઘટના ઘટી ત્યારે હું પણ ઘણી ટેન્શનમાં હતી, કારણ કે બોટ પણ ગઈ. એક અમારી પ્રોપર્ટી સર 50 લાખની બોટ તે સમય હતી, અત્યારે નવી બનાવવા જાય તો એ ફિશિંગ બોટ સર 70 થી 80 લાખની બને, અને આખી ફાઈબરની હતી. એ પ્રોપર્ટી ગઈ એટલે એક આધાર ગયો, બીજું કે કઈ ગવર્નમેન્ટ જોબ ની હતી મારી પાસે. અને એ સમયે સર મને લાગ્યું કે હવે હું શું કરું કે જેનાથી આ બધું જ થઈ શકે. મારે લોન પણ ભરવાની, ઘર પણ ચલાવવાનું, છોકરાને ભણાવવાનું, તો હું કેવી રીતે મેનેજ કરી શકીશ, એમ કરતા વિચારતા ઘણો સમય થઈ ગયો. અને બીજું સર એ પણ મેં વિચાર્યું કે ક્યાં સુધી કોઈના પર ડિપેન્ડેબલ રહેવાનું આપણે. મારે પોતે આગળ પોતાના પગ પર સર ઉભા રહેવું હતું. આમ તો આપવા વાળા પણ ઘણા હતા સર, મદદ કરનારા પણ, કોઈની પાસે માંગવું એ મને પસંદ નથી, અને મારે પોતે પગભર બનવું હતું. અને સર જ્યારે આ બિઝનેસમાં હું આવી, શરૂઆત કરી, ત્યારે શરૂઆતમાં તકલીફ તો મને પણ ઘણી પડી, ક્યાં કેવી રીતે થશે, મારાથી થશે કે નહીં, પણ મને આવું લાગતું હતું. પણ મેં તમને કીધું ને કે ડગલે ને પગલે મેં જયેન્દ્ર સર અને ચેતના મેડમના કોન્ટેક્ટમાં રહી છું. આજે જે કઈ હું છું તેમના થકી જ છું.
એમની પાસેથી ગાઈડન્સ મેળવ્યું. અને બીજી ખાસ વિશેષ વાત એ હતી સર કે આ બિઝનેસમાં નોમિની ફેસિલિટી છે. એ મને થયું કે ચાલ હું આ બિઝનેસની શરૂઆત તો કરું. જે થશે તે મારા આવનારા વર્ષોમાં મારા છોકરાઓને તો કામ આવશે, આવો પણ મેં વિચાર કર્યો. અને થોડી હિંમત કરીને એમની પાસેથી ગાઈડન્સ લઈને ધીમે ધીમે ફિલ્ડમાં સર હું કામ કરતી ગઈ. અને મેડમ અને સરના સપોર્ટથી આજે હું આટલી કેટલી આગળ આવી ગઈ, કેવી રીતે આવી તે પણ મને સર ખબર નથી પડી. ને આજે જ્યારે ફૂલ ટાઈમ હું ફિલ્ડમાં જાઉં છું ત્યારે સર દરેક પ્રકારનો અનુભવ થાય છે. અને રોજ રાત્રે પણ મેડમને ફોન કરીને કે ઘરે જઈને હું શેર કરું છું કે આજે આ બન્યું, આજે આ થયું, તો કાલે આનું સોલ્યુશન કેવી રીતે લાવવાનું એ પણ હું ગાઈડન્સ લેવું છું એમની પાસે. ओके, मतलब आपको जब एहसास हो गया कि अब कोई चारा नहीं है और ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तो कुछ भी करके हमें जल्द से जल्द खुद के ऊपर डिपेंड होना है और आगे की लाइफ हमारे सामने खड़ी है, इंतजार कर रही है और बच्चों की ज़िंदगी बनानी है। तो फिर जल्दी से जल्दी आपने स्वस्थ होकर के आपने काम शुरू किया और आपकी लाइफ में माई लाइफ आया। तो जैसे आपने बताया कि आपके अपलाइन दोनों जयेंद्र सर और चेतना मैडम ने बहुत सपोर्ट किया आपको। तो आगे मैं आपको पूछना चाहता हूँ मैडम कि जब आप काम शुरू किया तो आपके पास समय था, क्योंकि आप तो नौकरी कर रहे थे और साथ में ट्यूशन क्लास भी कर रहे थे। तो आपने जैसे बताया कि आपके पास समय नहीं था, आप लगभग 8:30 बजे के बाद बिजनेस के लिए निकलते थे, राइट? હા સર. જ્યારે हाँ, સર જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે તમે કીધું તે પ્રમાણે કે સમય ન હતો મારી પાસે, કારણ કે 8 કલાક જોબના, પછી ટ્યુશન અને રાત્રે જ મારે ફિલ્ડમાં જવું પડતું હતું. પણ મેં સર મેડમ સાથે બેસીને પહેલા જ દિવસથી પ્લાનિંગ કર્યું હતું કે એક એરિયા વાઇઝ લિસ્ટ બનાવ્યું હતું અને કોને 95 ક્યારે આપવાની એ પણ મેં લિસ્ટ બનાવેલું હતું અને દરેકને એ પ્રમાણે 4 મહિના આપ્યું છે. અને બીજું કે સર જ્યારે અમે પ્લાનિંગ કરતા હતા ત્યારે હું પણ ડગમગી જતી હતી, પણ મેડમે મને ઘણીવાર સપોર્ટ કર્યો. એટલે મારા સર જ્યારે પહેલી વાર એક 95 આપી ત્યારે પછી મેડમે મને કીધું કે ના, તમે 30 દિવસમાં 195 આપી શકો છો. એટલે એક મારામાં આત્મવિશ્વાસ જગાડ્યો. પછી મને થયું કે ના, બધા કરી શકે તો હું કેમ ન કરી શકું. અને એ રીતે સર પ્લાનિંગ મુજબ જ મેં કામ કર્યું છે. અને પહેલા જ દિવસથી Right. મારો ફોકસ 95 પણ જ હતો, કારણ કે સમય ઓછો અને મને ઇન્કમ વધારે જરૂર હતી એટલા માટે. राइट, यानी कि आपने 95 इसलिए चुनी प्रोडक्ट में रिटेलिंग के लिए कि टर्नओवर ज़्यादा होता था और कम 95 बेच के ज़्यादा टर्नओवर होके ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला था, इसलिए आपने फोकस किया 95 के ऊपर। હા हेलो, સર. हाँ, तो आपने 95 के ऊपर फोकस किया। ओके, जैसे आपने बताया कि आपने काम शुरू किया, तो मैडम यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दिन का 1 या 2 घंटा अगर काम कर लिया, फिर उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमने आज तो बहुत सारा काम कर लिया, अभी काम करने की जरूरत नहीं है। या तो शाम को 5 बज गए, 6 बज गए, फिर उन लोगों को लगता है कि अब काम खत्म हो गया, यानी कि ड्यूटी हमारी खत्म हो गई, अब हम नहीं कर सकते। जबकि आप 8 बजे के बाद निकलते थे काम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि विकासिनी मैडम का स्ट्रगल या संघर्ष कितना है। अकेले वो खुद प्रॉब्लम फेस कर रही थी और सामने 8 बजे के बाद सुबह में उनका सर्विस रहता था, आने के बाद ट्यूशन क्लासेस रहते थे और फिर 7 बजे फ्री होते थे और बाद में खाना जो भी है बच्चों के लिए और उनके लिए, फिर 8 बजे निकलना। तो मैडम जब आप निकलते थे, क्या आपके पास व्हीकल है? आप कैसे निकलते थे बिजनेस के लिए? સર એ સમયે સર મને ગાડી આવડતી જ ન હતી અને મારી પાસે ગાડી પણ ન હતી. तो મને शुरू સર कैसे
ગાડી પણ મને બીજાએ આપી, મને શીખવી કોઈએ, એટલે અઠવાડિયા 10 દિવસમાં હું થોડી થોડી ચલાવતી થઈ ગઈ. પછી સર બંને પગ નીચે મૂકીને હું તો કાં સુધી ચલાવીને જતી. એ રીતે હું ગાડી ચલાવતી હતી. ઓહ मतलब અને પછી हाँ ओके ओके बोलिए बोलिए અને ગાડી જૂની જ હતી કોઈ આપેલી, એટલે સર ગાડીમાં ઘણી વખત લાઈટ પણ ન રહેતી, અને એ રીતે પણ હું ધીમે ધીમે પગ નીચે મૂકીને નીકળી જતી. અને એ રીતે ચલાવતા ચલાવતા મહિનામાં તો બરાબર કોન્ફિડન્સ આવી ગયો મને. અને સર પ્રોડક્ટની વાત કરું તો પછી મારે પ્રોડક્ટ લેવી કેવી રીતે એ પણ પ્રશ્ન હતો. એટલે સર મેં એ સમયે ₹1,00,000 લોન લીધી હતી, જે મેં ભરી દીધી છે અત્યારે. પણ મેં ₹1,00,000 લોન લઈને આ એક કામ શરૂ કર્યું હતું. અને મને વિશ્વાસ હતો કે આ બિઝનેસમાંથી જ હું આ લોન ભરીશ, અને મેં ભરી પણ દીધી છે. ओके तो यानी कि आपने शुरुआत में जैसे शुरू किया बिजनेस, तो ये आपको स्ट्रगल नहीं लगा कि मुझे बाइक नहीं चलानी आती, मैं ऑटो में कैसे जाऊं, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मैं अकेली हूँ, 7 बजे के बाद मैं कैसे निकलूं, 8 बजे कैसे निकलूं, और मैं स्टॉक नहीं है मेरे पास। तो वो सब बातों से आपने रोना नहीं रोया, अपलाइन को एक्सक्यूज नहीं दिया। वो एक ही था कारण, क्योंकि आपका वाई क्लियर हो गया था कि मुझे ये बिजनेस करना है, क्योंकि ये बिजनेस में से आप कहाँ पहुंच सकती है। और जैसे आपने बताया कि नॉमिनी फैसिलिटी आपको टच कर गया ज़्यादातर, कि काम करेंगे तो आगे जाके भी इसका बेनिफिट मिल सकता है अगली पीढ़ी को। जो आज आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है वो आपके बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात को आपने, जो आपकी वीकनेस थी, जो आपने स्ट्रेंथ बना लिया कि मुझे ही करना है और यहीं से ही करना है, और जिसके अंदर सोने पे सुहागा आपके अपलाइन ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके एक प्लान बनाया और आपने शुरू किया। अच्छी बात है। तो मैडम जब आपने शुरू किया, आप 3 काम कर रही थी, तो आपको कभी ऐसा लगता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, रात को इतने बजे इतने लेट आते थे? आप रेगुलर कितने बजे घर पे आते थे मैडम? જોબથી સર 4 વાગે આવી જતી હતી. પછી ટ્યુશન કરીને ફિલ્ડમાં જતી તો મારો સર આવવાનો ટાઈમ કઈ નક્કી જ નહીં, 11 પણ થઈ જાય, 11:30 પણ થઈ જાય. અને પછી તો હું ઘરે જતી જ નહીં, રિટેલિંગ કરીને સીધી ચેતના મેડમના ઘરે જ જતી, ડેલી રિપોર્ટ એમને આપતી, અને રોજે રોજનો પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એમની પાસેથી હું મેળવતી. અને એના કારણે જ મારો આટલો ગ્રોથ થયો છે. મેં કીધું ને કે મેં ડગલે ને પગલે સર ગાઈડન્સ એમની પાસેથી લીધું છે. वेरी गुड। यानी कि आप रात को 11-12 बजे घर पे पहुंचने के बाद भी आप अपलाइन को मिलने के बाद घर पे जाती थी? હા સર, મને મૂકવા આવતા જયેન્દ્ર સર, ચેતના મેડમ ઘણીવાર ઘરે મૂકવા પણ આવતા રાતના મોડું થાય ત્યારે. ओके तो वो टाइम पे आपके बच्चे घर पे अकेले रहते थे, तो फिर वो आपको ऐसा टेंशन नहीं रहता था? ના સર, એ લોકોને પછી ધીમે ધીમે ટેવ પડી ગઈ. પહેલા ફોન ને એવું કરતા હતા, પછી હું કહીને જ જતી કે આટલું લેટ થશે, એટલે ધીમે ધીમે ટેવાઈ ગયા એ લોકો પણ. मतलब आपने भी आपके बच्चों को हैबिट डाल दी कि अभी ये करना ही है आपको, हाँ। आपको वो टाइम पे अकेले रहना ही है। ठीक है। तो आप सुबह में कितने बजे, सुबह में, क्योंकि रात को आप 11-12 बजे तक फील्ड में रहती थी और घर पे पहुंचती थी, तो सुबह में कितने बजे आपको उठना होता था? कितने बजे आप सुबह, आपकी गुड मॉर्निंग होती थी? સર 5 વાગે તો ઉઠવું જ પડતું, કારણ કે જોબ પર જવાનું એટલે ઘરે બધું કામ પતાવીને રસોઈ ને બધું કરીને જવું પડતું, ડબ્બો લઈને હું જતી. એટલે यानी कि મને हाँ बोलिए बोलिए। ઊંઘ ઓછી પડતી હતી એ સમયે. राइट राइट। यानी कि आपकी नींद बहुत कम होती थी, आपको सुबह जल्दी उठ के 5 बजे उठ के निकलना होता था सब काम करके, और फिर रात को तो 12 बजे, 11-12 बजे आपको आना होता था। ओके। तो मैडम जब आपने शुरू किया काम, तो तीनों काम आप साथ में कर रही थी, महिला ऐप के साथ दोनों, तो आपको ये फुल टाइम करने का आइडिया कहाँ से आया और कब आपको लगा कि मुझे अब फुल टाइम करना चाहिए? એ સર કે જ્યારે સાપુતારા મેં કટ ઓફ ટ્રેનિંગ એટેન્ડ કરી, અને ત્યાંથી આવ્યા પછી બીજા જ દિવસે ચેતના મેડમ અને જયેન્દ્ર સર સાથે બેસીને એમણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને મને બધું બતાવ્યું કે જો તમે આટલા કલાક ફિલ્ડમાં આપો તો તમને આટલું મળશે. અને ત્યારથી એ ગણતરી સર મારા મનમાં બેસી ગઈ, અને ત્યાર પછી મેં બીજા દિવસે નક્કી કર્યું કે મારે જોબ હવે રિઝાઇન કરવી છે. અને મેં ત્યાર પછી ઓફિસમાં સરને વાત કરી, સરે ના પણ મને ઘણી કહી, અને આજે પણ ઓફિસમાંથી સરના ફોન આવે છે
કે ના ફાવતું એટલે પાછા જોબ પર આવી જાઓ. તો સરને મેં કીધું કે ના સારું છે. એટલે અને એ આખી મને જે એ લોકોએ કેલ્ક્યુલેટ કરીને બતાવ્યું ચેતના મેડમ અને જયેન્દ્ર સરે, એ પ્રમાણે મેં સર વિચાર્યું કે 8 કલાકનો સમય જોબમાં હું બગાડી રહી છું. મારો સમય બગડી રહ્યો છે. કારણ કે એની સામે મને એટલું વળતર મળતું ન હતું કે જેમાંથી મારી બધી જરૂરિયાત પૂરી થઈ શકે. અને એમના પ્લાનિંગ પ્રમાણે પછી મેં પણ વિચારીને સર જોબ છોડી દીધી. ઓકે, કેટલા ટાઈમ પહેલા તમે જોબ છોડી મેડમ? મારું ટીસી કમ્પ્લીટ થયું તે પહેલા સર મેં જોબ છોડી દીધેલી. તો લગભગ તમે આ સ્ટાર્ટ કર્યું માય લાઈફ એના પછી કેટલા સમયમાં? 8 મહિના થયા, 7-8 મહિના. 7-8 મહિના થયા. ઓકે, તો મતલબ તમે જો જ્યારે માય લાઈફ સ્ટાર્ટ કર્યું એના પછી 5-6 મહિના પછી છોડી? હા પછી છોડી. રાઈટ. ઓકે, તો જોબ છોડ્યા પછી તમે સવારથી સાંજ સુધીનો તમારો શેડ્યુલ કેવો રહે છે? એટલે તમે ટ્યુશન કરો છો અત્યારે કે ટ્યુશનની સાથે કરો છો કે પછી? હા, જોબ છોડ્યા પછી ટ્યુશન મારું ચાલુ રહેતું. અત્યારે મારું ટ્યુશન બંધ છે. જોબ છોડ્યા પછી ટ્યુશન ચાલુ રહેતું, પણ હું સવારની 10 વાગે નીકળી જતી ઘરેથી અને 4:30 ટ્યુશન હોય એટલે હું 4 વાગે ઘરે આવતી. ને ટ્યુશન પછી જ્યાં ફિક્સ મારે પ્રોડક્ટ આપવાની જ હોય, જેમને સામેથી રેગ્યુલર કોર્સમાં ચાલતું હોય, અને ટ્યુશન પતાવ્યા પછી હું આપવા માટે જતી ને નવી જગ્યાએ હું સવારે જતી. ओके, यानी कि आप 10 से लेकर के 4 बजे तक आप नए लोगों को मिलते थे हाँ। और ट्यूशन फिर आप आते थे, ट्यूशन करते थे। ट्यूशन के बाद फिर नए लोग, फिर बाद में जिन लोगों को प्रोडक्ट दिया था देना है, हाँ। उनकी सर्विस कॉल और सर्विस विजिट के लिए जाते थे? जाते थे, मैडम के साथ जाती थी रात को। रात। तो मैडम के साथ आप जाते थे, यानी कि आप मैडम दिन का कितने घंटे काम करती थी? कितना घंटा आपका माई लाइफ के रेगुलर, आप माई लाइफ के कितने घंटे माई लाइफ में आप देते हो आज? આજે તો સર અત્યારે ટ્યુશન નથી એટલે આજે તો હું 10 વાગ્યાથી મારું કઈ નક્કી જ નહીં. સવારે ઘરેથી નીકળું તો પછી રાત્રે 11 પણ વાગે, 10 પણ વાગે ને 12 પણ વાગે. કઈ ટાઈમ સર નક્કી નથી આજે. પણ डेली? એટલું નક્કી ડેલી અત્યારે ફૂલ ટાઈમ છું ના, અત્યારે ટ્યુશન નથી મારું. અત્યારે ફૂલ ટાઈમ છું. यानी कि आप फुल टाइम, यानी कि आप फुल टाइम को फुल टाइम करके आपने सुबह 10 बजे से लेकर के अभी भी आप 10 बजे 11 बजे तक आप, क्योंकि अभी वेकेशन है तो ट्यूशन चालू नहीं है, हाँ तो मतलब कि आपके आपने अभी भी करीबन 12 घंटे, 10 से 12 घंटे आज भी आप काम करते हो और हर दिन? हाँ सर, हर दिन। यानी कि हर दिन आपका 10 से 12 घंटा। यहाँ पर ऐसा है मैडम कि मेरे बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कि फुल टाइम करते हैं लेकिन दिन का 1-2 घंटे भी काम नहीं कर रहे और अपने आप को बोलते हैं फुल टाइमर। आज मुझे एक बात समझ में आया कि फुल टाइम करके लोग 1-2 घंटा 3 घंटा भी दिन का काम नहीं करते और अपलाइन को रिपोर्टिंग भी गलत देते, जबकि आपका वाई क्लियर हो गया है, आपका नीड है और आपको समझ में आ गया है कि माई लाइफ क्या है, माई लाइफ की अहमियत क्या है, माई लाइफ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और आज आपने 10 से 12 घंटे आज भी आप रेगुलर वेकेशन का बेनिफिट उठाते हुए, क्योंकि अभी आपके ट्यूशन नहीं है, तो फिर भी आप इतना करते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई फुल टाइम के नाम पे 1 महीना 2 महीना कर लिया, लेकिन 3-4 महीने के बाद फिर उनका फुल टाइम 2-3 घंटे का हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे लीडर है कि आज 1-2 घंटे भी काम नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं और बोलते हैं अपने आप को फुल टाइम। दोस्तों, ये हमें विकासिनी मैडम की लाइफ से सीखना चाहिए कि फुल टाइम किसको बोलते हैं, पार्ट टाइम किसको बोलते हैं। तो आज ऐसे ही वो हमारी बैच की टॉपर नहीं है जिन्होंने अपनी स्टोरी में बहुत सारी चीजें बताई। थैंक यू सो मच मैडम। आगे मैं कुछ एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने 95 की बात करी, तो आपका टारगेट था, चेतना मैडम और जयेंद्र सर ने आपको बताया था कि 1 महीने में आपको
1 महीने में यानी कि 30 दिन में आपको 100 95 बेचनी है, राइट? तो आपका, हेलो, हाँ सर। हाँ, तो आपका 95 का रिकॉर्ड यानी कि आपने शुरू किया पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, अगर आपके पास ऐसा कुछ डेटा है, आपको मालूम है, तो प्लीज आप थोड़ा वो उसी के ऊपर आप थोड़ा फोकस करिए कि आपने शुरू किया पहले महीने में कितना आपने 95 सेल किया, दूसरे महीने में कितना 95 किया, यानी कि अगर रिकॉर्ड है आपके पास तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। સર જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે મહિનામાં 100 તો નહીં પણ 75 જેવી લગભગ હતી અને પછી 80 પછી 60 એ રીતે સર અત્યાર સુધી 672 95 થઈ છે જેની નોંધ મેં કરી છે अब અને तक कितना हुआ? अब 672 तक 672 यानी तो 672 हाँ सर 672 95 आपने सेल कर दी अब तक। हाँ सर क्या बात है, क्या बात है, सैल्यूट मैडम, એટલે रियली रियली धन्यवाद। मैं मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आपने 677, मुझे लग रहा है कि पूरी टीम ने मिलके, मेरी पूरी टीम ने मिलके शायद 600 सेल करी है कि नहीं करी है, आपने अकेली ने कितने टाइम में मैडम, मतलब कितने टाइम में आपने 672 95 सेल करी है? સર મેં જ્યારે ટીસી ની શરૂઆત એટલે ટીસી બનીને પછી ડીટીસી સુધીનું છે यानी અત્યાર टीसी સુધી હા અત્યારે બી મારું 95 પર ફોકસ વધારે છે અને અત્યાર સુધી હવે સર મને એક ટેવ જ પડી ગઈ છે કે 95 નહીં જાય તો મને ઊંઘ જ નહીં આવે अच्छा, तो हर दिन में आपका 95 मतलब जाना चाहिए। હા જાના જાય નહીં જાય તો સર 10 પાઉં છું એવી રીતે 3 વ્યક્તિને આપું છું અને अच्छा, પછી 10 દિવસ પૂરા થાય यानी कि आप दिन में भी, વિઝિટ કરાવો हाँ, यानी कि आप एक आदमी अगर नहीं लेता है 95 एक दिन का, तो फिर आप दिन में 3 लोगों को बेच के भी एक तो 95 दिन का बेच लेती। હા સર बहुत बढ़िया। तो मैडम आगे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि 95 हर रोज इतनी सेल करना वो कैसे होता है, कैसे करते हो? आपका लिस्ट तो आपका शुरू में ही खत्म हो गया होगा, क्योंकि कोई भी लिस्ट बनाता है तो दोस्तों से ज्यादा लोगों का लिस्ट नहीं बना पाता। तो आपने कैसे 670 672 आज तक 95 सेल करे, यानी कि आप कैसे करते हो? आपके लिस्ट के ऊपर काम करते हो, या फिर आपके कस्टमर के पास से लिस्ट लेते हो, या फिर आप अननोन में जाते हो? आपका क्या स्टाइल है मैडम, कैसे काम करते हो प्लीज? સર અત્યારે મારા જે નવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે એમના લિસ્ટ પર હું અત્યારે કામ કરું છું એમની સાથે જાઉં છું અને રેફરન્સ પણ મળે છે ને અત્યારે તો લગભગ ઘણા લોકો સુધી વાત પહોંચી પણ ગઈ છે અમારા ગામડામાં કે આ વિકાસીની બેન એક ખૂબ સરસ જ્યુસ આપે છે અને જે પીવા જેવું છે ને એટલા માટે સર રેફરન્સ થી ઘણા કોલ પણ આવે છે राइट राइट। तो आपका काम देख के उन लोगों ने और लोगों को फोन करते हैं कि विकास में अच्छा जूस दे रही है और उनसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, फिर आपको सामने से भी कॉल आते हैं अभी, राइट? मैडम जब आप 95 सेल करते हो तो क्या कोई आप रिकॉर्ड रखते हो कि फिर कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, कैसे आप काम करते हो? 95 के सेल करने के बाद आप रिकॉर्ड, कस्टमर का नाम, उनका कब ये 95 दिया, कब खत्म हो रहा है, फिर उसको मिलना है, या बीच में आप सर्विस कॉल, सर्विस विजिट, ऐसा कुछ आप करते हो, क्या करते हो? સર મને મેડમે શીખવ્યું હતું કે તમે 95 જ્યારે સેલ કરવા જશો ત્યારે તમારે ડેટ લખવાની છે એમને શું પ્રોબ્લેમ છે એ લખવાનું છે કારણ કે 95 આપ્યા પછી 10 દિવસમાં જો હું ચેતના મેડમને લઈને વિઝિટ માટે જાઉં છું એમને કેવું લાગે છે મેડમ પૂછે છે અને જ્યારે મહિનો પૂરો થવાનો હોય ત્યારે પછી મેડમ બોક્સ પણ ઘણીવાર જોવા માંગે કે તમે કેટલી 95 પીધી છે અને એ રીતે બધાને સર 4 મહિના પૂરા કરાવેલા છે અને ઘણા લોકોને સરસ રિઝલ્ટ પણ મળેલું છે અને 10.95 ના પાઉચ એટલા માટે આપો કે ડાયરી કોઈને મોંઘી લાગે લેવા માટે તૈયાર ન થાય એટલા માટે કહું છું કે નવું કોઈ અનનોન પર્સન ને તો હું કહું છું કે તમે 10 લઈને ટ્રાય કરો અને મને વિશ્વાસ કે એને પીને સારું જ લાગશે અને 10 દિવસમાં હું પછી પૂરા થાય એટલે મેડમ સાથે 95 લઈને પહોંચી જાઉં છું
वेरी गुड। तो आपने एक टेक्निक डेवलप करी है कि हर किसी को मेगा तो लगता है और शुरू में 95 के ऊपर भरोसा नहीं होता कि ये रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, एक साथ में इतना पेमेंट देना है, ये सब कुछ। तो पहले आप उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, उनको जीतने के लिए आपने एक स्ट्रेटजी डेवलप करी और वो स्ट्रेटजी काम करती है। यानी कि 10 दिन वो पाउच 10 दिन अटेंड करने के बाद, पाउच यूज करने के बाद उनको अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है और उनको रिजल्ट भी 10 दिन में। ऐसा होता है मैडम कि कभी आपने किसी को 10 दिन दिया और बोले कि नहीं नहीं कोई कोई फायदा नहीं हुआ, कोई अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ कभी कभार ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अभी नहीं जरूरत है, ऐसा कुछ कभी बोला रहेगा किसी ने? ના સર, અત્યાર સુધી એવું કોઈ બન્યું નથી. કારણ કે હું 5 આપતી નથી. 5 ફી તો ન ખ્યાલ આવે. 10 ફી એટલે ખબર જ પડી જાય. 10 થી ઓછા હું કોઈને આપતી નથી. અને સર, 1-2 વાર એવું થયું કે 3 મહિના સુધી લીધું હોય અને જે ચોથી વાર આપવાનું, અત્યારે અમારા નવસારીમાં જ અમે મેડમ સાથે ગયા હતા રાત્રે આપવા માટે. તો એક બેને, અમે જ્યારે ઘરની બહાર જ ઊભા હતા ત્યારે બેને કીધું કે મારે હવે ચોથું નથી લેવું. તો મેડમે કીધું કે અમે તમને આપવા માટે નથી આવ્યા. આમ કરીને એમના ઘરમાં ગયા, બેઠા, પછી વાતચીત કરી મેડમે. અને ચેતના મેડમે 95 વિશે કઈ જ વાત નહીં કરી. પ્રોડક્ટને લગતી કોઈ પણ વાત કરી જ નહીં એમની જોડે. આમ જ વાતચીત કરીને અડધો કલાક પૂરો થયો. પછી મેડમે કીધું કે હવે અમે જઈએ. ત્યારે એ બેને સામેથી જ સર કીધું કે ચાલો તો હું ચોથી પીટ લેવું, આપી જાઉં. એટલે આવું પણ 2-3 વાર બન્યું છે. वाओ वाओ, ग्रेट 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 एक्सपीरियंस। यानी कि उनको नहीं लेना है लेकिन फिर भी आपने उसके घर में जाकर के बात किया, बिना 95 के अलावा सब कुछ बात किया, 95 का बात नहीं किया, प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात नहीं किया, बिजनेस के बारे में बात नहीं किया, लेकिन और कुछ बातें चलती रही और फिर बाद में उनको लगा कि मुझे लेना चाहिए, सामने से फिर मांगा। ऐसे 2-3 कस्टमर के साथ ऐसा हुआ। હા સર. तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक बात का नोट करना है कि कई बार कोई ना बोलता है तो हम सीधा मुंह लटका के चले जाते हैं, लेकिन विकासिनी बहन के पास उनकी अपलाइन चेतना बहन है जो कि एक्सपीरियंस लीडर है, आज आरटीसी पे है, तो उनका एक्सपीरियंस का बेनिफिट भी मैडम को मिला और एक अच्छा एक उन्होंने बात करने के बहाने उसके साथ बैठ के टाइम बिताया और जैसे टाइम बिताया उनको इमोशनल होकर के भी ये प्रोडक्ट लेनी पड़ी। तो ये पॉइंट नोट करने जैसा है दोस्तों कि अगर कोई ना भी बोलता है तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। हमारे चेहरे पे ऐसा ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं आना चाहिए, हमारा चेहरे का रंग उड़ नहीं जाना चाहिए और कॉन्फिडेंटली उसके साथ बैठ के बात करना है। कोई बात नहीं, प्रोडक्ट नहीं लेनी तो कोई चीज नहीं। आपने यहाँ पर देखा कि 3-4 जगह पर ऐसा हुआ है जैसा अभी विकासिनी मैडम ने बताया। ओके मैडम, तो जैसे आपने बताया कि शुरू में आपने काम शुरू किया तो आपके पास स्टॉक नहीं था और कभी कभार कोई लेट नाइट मांगता था तो भी आपको लगता था कि मुझे मेरे पास 95 नहीं है तो क्या करूँ, ये करूँ। तो शुरू में आपको ऐसा लगा कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए और आपने स्टॉक करने के लिए आपके पास पैसा, क्या आपके पास पैसा अवेलेबल था? ના સર, મારી પાસે એટલા પૈસા ન હતા. राइट। તેથી तो મેં વ્યાજે પૈસા લઈને સર શરૂઆત કરી હતી. यानी कि आपने पैसा इंटरेस्ट पे उठाया और शुरू किया था काम। और आई थिंक आपने बताया शुरू में कि 1 लाख का आपने लोन लिया था। હા સર. हाँ, तो कितने परसेंटेज पे लोन लिया था मैडम आपने? 9% જેવું હતું સર. 9% यानी 9% पे आपने इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के आपने स्टॉक लिया 1 लाख का। હા સર, પણ એ સિવાય મારી પાસે કોઈ ઓપ્શન જ નહીં હતો અને મારે આ કરવું જ હતું સર. અને મને વિશ્વાસ પણ હતો કે આ લોન તો હું તરત જ ભરી દઈશ બિઝનેસ કરીને. तो आपको ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ कि अगर नहीं निकला स्टॉक क्या होगा, 1 लाख का मैं लोन ले रही हूँ, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर चलाना है, तो ये आपको थोड़ा टेंशन नहीं हुआ? સર, મારી પાસે ચેતના મેડમ અને જયેન્દ્ર સર હતા ને, આખું પ્લાનિંગ જ એમનું હતું. એમણે બતાવ્યું જ હતું એટલે મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ જ હતો કે હું લોન આમાંથી ભરી શકીશ. અને એ વિશ્વાસ સાથે સર મેં આ રાઈટ કામ રાઈટ। શરૂ કર્યું હતું.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बात सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे अब लग रहा है कि मैं भी एक नए नए तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर बन के मैं भी 95 बेचना शुरू कर दूं। ऐसा मुझे अभी इतना मैं एक्साइटेड हो जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में से इतना, आपके काम में से इतना सीखने को है मैडम। रियली मैं आपको जैसे सुनते जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे लीडर्स लोगों के अंदर खून क्यों नहीं खोल रहा है, क्योंकि इतना सारा एक दोस्तों, एक यहाँ पर ये बात नोट करने जैसी है कि एक लेडी होकर के दोस्तों सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को रात को 12 बजे तक काम किया है। फुल टाइम तो आज किया मैडम ने, जो आज 8-10 बजे के बाद निकलती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी सिद्धि है। थैंक यू। तो मैडम आगे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि आप रिकॉर्ड रखती हो और आप हर एक कस्टमर का, जैसे आपने बताया कि सुबह में आप नए लोगों को मिलते हो और शाम को दोपहर के बाद आप सर्विस कॉल, सर्विस विजिट पे जाते हो, राइट? तो कभी कभार आपके साथ में कोई ऐसा ऐसा कोई बात हुआ, यानी कि आपने कोई कस्टमर नाराज हो गया, आपसे रूठ गया, या थोड़ा कोई फ्रस्ट्रेशन आ गया, ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस आपके साथ कोई हुआ हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए कि कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ, फिर आपको उन्होंने टैकल किया, कैसे टैकल किया आपने या चेतना मैडम दोनों ने? સર એવું પણ હતું કે નારાજ થઈ જવાય એવું પણ હતું. એવું પણ મારી સાથે બેડ એક્સપિરિયન્સ તો થયો હતો. પણ મારે સર આગળ વધવું હતું અને નારાજ થવાનો કઈ હક જ નહીં હતો મને. અને મારે આમાંથી ફિલ્ડમાંથી સર બધું શીખવું હતું. અને આ બધું જ મને ચેતના મેડમ અને જયેન્દ્ર સરે આગળથી પહેલેથી વાત શીખવી જ હતી કે આવું આવું થશે, આવું બનશે, ત્યારે તમારે શું કરવાનું, કેવી રીતે તમારે વાત કરવાની, કેવી રીતે આગળ વધવાનું. કોઈક વાર નારાજ થવાનો સમય પણ આવે તો પણ હું સર કસ્ટમર સાથે હસીને જ વાત કરતી અને બને એટલું જેને પ્રોડક્ટ આપ્યું હોય એના કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનો હું કાયમ પ્રયત્ન કરતી. મળી ન શકાય તો છેલ્લે કોલ પણ હું કરતી. અને જેમણે 95 યુઝ કરી છે સર, એ બધા જ આજે આપણા યુઝર બન્યા છે. અને આપણી ઘણી આ ટૂથપેસ્ટ થી લઈને હેર ઓઇલ, શેમ્પુ, ફેસ વોશ, આ બધી પ્રોડક્ટ એ લોકો યુઝ કરે છે આજે પણ. यानी कि आपने 95 दिया, उनके बाद आपने उनको आपने पेस्ट, शैम्पू, साबुन ऐसा भी उनको प्रोडक्ट दे करके उनको और प्रोडक्ट का भी कस्टमर बनाया? હા સર. राइट, राइट। बहुत बढ़िया मैडम। रियली आपका कामकाज बहुत बढ़िया है मैडम। अब तक मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अब तक आपने, अगर आपके पास डेटा अलग से है तो ठीक है, या फिर टोटल अगर आप बता सकते हैं कि आप रिटेल प्रॉफिट अब तक आपका कितना हुआ होगा, और माई लाइफ से आपका कितना इनकम हुआ है, या अगर नहीं है तो दोनों मिला के टोटल आपका कितना इनकम अब तक हुआ है? સર 9 લાખ જેવું કહી શકાય. કારણ કે 95 ની જે પ્રાઇસ હતી આપણી પહેલા 4000 હતી. પણ હું થોડો ભાવ સર ઓછો લઈને આપતી હતી. અત્યારે 3800 છે એમાંથી. અત્યારે હું 3.5 માં આપું છું ને આગળ મેં 3700 માં આપી હતી. અને એ જ ભાવમાં બધાને મેં જેને પણ 95 આપતી બધાને એક જ ભાવમાં આપતી હતી. आपका स्ट्रेटजी था कि जो भी પ્રોફિટ રિટેલ પ્રોફિટ તરફ સર મેં વધારે જોયું નથી. મેં એટલું જ ધ્યાન રાખ્યું કે 4 મહિના આ લોકો યુઝ કરે, એમને રિઝલ્ટ મળે અને કાયમ માટેના આપણા યુઝર બને, એનું જ ધ્યાન રાખ્યું હતું. राइट, राइट। मतलब आपने रिटेल प्रॉफिट न देखते हुए आपने एक बात फोकस किया कि वो 4 महीना यूज करे, और 4 महीना यूज करने के बाद रेगुलर कस्टमर, तो हमारा रेगुलर कंज्यूमर बन जाए, रेगुलर हमारा प्रोडक्ट लेता रहे। तो ये आपका स्ट्रेटजी था, वो बहुत ही बढ़िया है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है मैडम। मैं आपका अगला सवाल मेरा यही है कि जैसे कि आपने प्रोडक्ट दिया, एक रेशियो में बाद में बात करता हूँ आपको, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि आपने प्रोडक्ट दिया और समझो कि आपने 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया, तो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट रिपीट करते हैं? पूरा 4 महीना प्रोडक्ट यूज करने वाले आपके कस्टमर में से कितने कस्टमर है जो 100 में से जो रेगुलर वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि कितने % होंगे? સર 100 લોકોને આપી હોય તો 100 માંથી 50%
30% લોકો તો રેગ્યુલર યુઝ કરે છે। यस, यानी कि 30 से 50% लोग हैं जो रेगुलर 4 महीना उन्होंने यूज किया ही किया है। હા સર, राइट, અને રિઝલ્ટ પણ લીધા છે એના। और रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो बाकी के जो लोग हैं जो रिपीट नहीं करते, वो शायद 1 महीने में छोड़ देते हैं या 2 महीने में छोड़ देते हैं, या 1 महीना भी पूरा इस्तेमाल नहीं करते। आपका क्या एक्सपीरियंस है? ના સર, 1-2 મહિનામાં છોડ્યું એવું નથી બન્યું। થોડા એવા લોકો છે કે જેમણે 3 મહિના લીધી છે, બાકી મોસ્ટ ઓફ 4 મહિના પૂરી કરી। यस यस, यानी कि आपने ज्यादातर 3 महीना यूज करवाई है। 4 महीने वाले लोग हैं जो 30 से 50% लोग हैं जो 4 से 5, यानी कि 4 महीना यूज करने वाले 50% के आसपास, यानी 30 से 50% लोग हैं जो 4 महीना किया। बाकी सब लोगों ने 3 महीना, तो आपने ज्यादातर लोगों को यूज करवाया ही है। तो હા સર, वो तो आपने उसके पीछे ज्यादा मेहनत किया रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट देने के बाद यूज तभी वो लोग करते हैं जब उसके पीछे पड़ते हैं, उसको मिलते रहते हैं। हाउस विजिट, उसका सर्विस कॉल, सर्विस विजिट रेगुलर अगर करते हैं, तभी वो करके वो ज्यादातर वो प्रोडक्ट यूज करते होंगे। એટલે સર જ્યારે હું આપું છું ત્યારે પહેલેથી જ કહીને જ આપું છું કે જો તમે 3 થી 4 મહિના કરવાના હોય તો જ હું આપું, કારણ કે આનો નિયમ છે કે 4 મહિના તમે પીવો તો જ તમારા શરીરમાંથી કચરો કે કંઈક રોગ બહાર નીકળશે। બાકી આમ જ તમે 1-2 મહિના પીવાના છો તો એનો કોઈ મિનિંગ જ નથી। આમ કહીને જ આપું છું, અને આપ્યા પછી 15 દિવસ થાય એટલે કોલ કરું, મળવા માટે જાઉં, અને મેડમને મળવા માટે લઈ જાઉં, એટલે બાકીનો જે પ્રોસેસ હોય એ મેડમ બધું સમજાવી દે। राइट, ओके। तो मैडम, जैसे अभी आपने बताया कि आपके मतलब आपकी टोटल इनकम आपने बताई, वो 9 लाख, आपने 9 लाख जो बताया वो आपका टर्नओवर था या इनकम था? સર ટર્નઓવર था। अभी टर्नओवर था, ओके। तो इनकम आपका कितना हुआ रहेगा अब तक? सर लॉयल्टी भी गणिए हाँ, तो करीबन अराउंड ए- अराउंड आपने अब तक रिटेल प्रॉफिट और आपका कंपनी से आया हुआ इनकम करीबन अराउंड आपका कितना हुआ होगा टोटल कुल मिला के? 14 आश्रय सर 14-15 लाख खરું। टर्नओवर 14-15 लाख आपका इनकम। इनकम के बारे में, आपका जो इनकम आया होगा आपके पास, रिटेल प्रॉफिट और जो आपने कंपनी से इनकम आया रहेगा आपके अकाउंट में। हाँ हाँ सर, 3 लाख खरी। अच्छा, 3 लाख 3 लाख आपने इनकम अब तक आपकी हुई होगी, अब तक की आपकी इनकम होगी, राइट? हाँ सर, અત્યારે લોયલ્ટી પર આવે છે ને। रेगुलर लॉयल्टी भी आप ले रही है डीटीसी के बाद। हाँ, तो રેગ્યુલર। कितना महीना हो गया आपको डीटीसी, और कितनी आपने लॉयल्टी पहले में, मतलब डीटीसी के बाद हर महीना आपने लॉयल्टी लिया, कितना महीना हो गया? હા સર, 6 મહિના થયા અને દરેક મહિને મેં લોયલ્ટી લીધી છે। यानी कि 6 महीने से आप रेगुलर 4 लॉयल्टी ले रही, कितना हाँ, लॉयल्टी સિલ્વર का બન્યા પછી अच्छा, सिल्वर के बाद भी आपने, हाँ तो सिल्वर સર, के बाद आपका रैंक इनकम आता होगा। મને હા સર રેન્ક ઇન્કમ પર લઉં છું। वेरी મને गुड। જયેન્દ્ર સરે ડબલ લોયલ્ટીનો જ બતાવેલો ટાર્ગેટ અને રેન્ક ઇન્કમનો, એ પ્રમાણે જ હું બિઝનેસ કરું છું કે મહિનામાં આટલી મારે ઇન્કમ લેવી છે, કારણ કે મારે હપ્તો ભરવાનો હોય આમાંથી, એટલે એ પ્રમાણે સર પ્લાનિંગ કરેલું છે। राइट राइट, बहुत बढ़िया। तो आपने एक अच्छा इनकम, आप हर महीने आपका अभी इनकम कितना जा रहा है? हर महीने का एवरेज इनकम आपका कितना होगा अभी? સર ડબલ લોયલ્ટી ને બધું એસજીબી ને બધું મળીને 25 આશરે 25 के आसपास 25 आपका છે। इनकम? હા, 25 થી ઉપર થઈ છે। वेरी गुड, यानी कि हर महीना आपका इनकम 25,000 से ऊपर का आज भी आप ले रहे हो। હા, એટલા વધારે પણ ઓછું નથી, 25 થી વધારે। 25 से ज्यादा है लेकिन कम नहीं है, क्या बात है, क्या હા, बात है। रियली हेड्स ऑफ सैल्यूट। आज मेरे अच्छे अच्छे लीडर 25,000 महीने का इनकम नहीं ले पा रहे, जो एसटीसी भी है। और मुझे मुझे रियली आपके ऊपर नाज है, प्राउड है कि अच्छे अच्छे लीडर जो इनकम नहीं ले पा रहे हैं, आज आप डीटीसी रैंक के ऊपर आप इतना अच्छा इनकम ले पा रही है। ठीक है मैडम, और मेरा और एक क्वेश्चन आपके लिए, आपकी अब तक की टोटल टीम कितनी है? શું સર? टीम, आपकी टीम कितनी हुई अब? હા, એટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સર हाँ, टोटल डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं?
સર આશરે 25 જેટલા ખરા. 25 जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट? तो आपने आपके आप कस्टमर जो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आप उसको प्लान दिखाती है, मतलब कब आप जाकर के उनको प्लान दिखाने के लिए बात करती है? कस्टमर बनाने के बाद वो कब डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए आप प्रोसेस करते हो? तो आप कैसे काम करते हो? मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए, कस्टमर में से डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए आप कब ट्राई करते हो, प्लान दिखाते हो? तो उसके लिए आप आपका क्या स्ट्रेटेजी? સર પહેલા પ્રોડક્ટ યુઝ કરવા માટે આપું છું, પછી પ્રોડક્ટ યુઝ કરે પછી એમનો રિવ્યુ લઉં છું કે એમને કેવું લાગ્યું, અને પછી સર હું મેડમને મળવા માટે લઈ જાઉં છું અને પ્લાન ને મેડમ બતાવે છે. वेरी तो અને आपको રોજ लगता है હા बोलो સર રોજ ફિલ્ડમાં જવાનો માટે મારે રોજ 200 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ઓછામાં ઓછું હું રોજ કાઢું છું. 200 નું પેટ્રોલ મારે રોજ પુરાવવું પડે. अच्छा, पर डे आपका हर दिन का 200 रुपए का पेट्रोल आप जाता है હા आपका बाइक का? જાય. હા क्या बात है! यहाँ पर અને बहुत सारे हाँ, बताइए। મારી ટીમમાં ટીસી છે, સુપરસ્ટાર ઈગલ છે. आपकी टीम में टीसी कितने हैं? એક ટીસી છે સર, एक टीसी और એક सुपरस्टार। સુપરસ્ટાર, હા એક સુપરસ્ટાર ઈગલ છે. राइट राइट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैडम। और मेरा आखिरी सवाल है आपको। तो जैसे आपने बताया कि आपका टारगेट है कि गूंज 7 तक आपको एसटीसी बनना है। હા સર, आपको भरोसा है कि आप गूंज 7 तक एसटीसी बन जाओगे? 101% સર. क्या बात है, क्या बात હા है! ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे तो अभी नहीं लग रहा है कि आप नहीं बन सकते। 100% बन जाओगे। और हम हमारी पूरी रोकर परिवार की, रॉक एंड रॉक टीम की, सभी लीडर्स की और मेरी भी शुभकामना है कि आप गूंज 7 में आपका भी जुलूस निकले, आपका भी पूरी फैमिली के साथ स्टेज के ऊपर सम्मान हो। और ये 100% होगा, क्योंकि आपके अपलाइन ने ठान लिया है आपके साथ, तो वो होके रहेगा। क्योंकि उनके अंदर एक खूबी है, कूट कूट के भर के जो ठान लिया वो करके रहते हैं। जो हमारे जयेंद्र सर है, चेतना मैडम है और संतोष सर की एक स्पेशलिटी है कि उन्होंने सोचा कि इनको ये लेवल के ऊपर पहुंचाना है, फिर तो बात गई। उनको अगर नहीं भी बनना है तो वो बना के छोड़ते, कुछ भी करके वो बना के छोड़ते। तो आप खुश नसीब हैं, उनके साथ आपका बिजनेस चल रहा है, आप उनके साथ हैं। बस ऐसे ही आप बने रहिएगा बिजनेस में। मैं पक्का वादा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। दूसरे किसी का तो मालूम नहीं आपका, क्योंकि आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क, क्योंकि बिजनेस हर कोई करता है यहाँ पर, लेकिन शुरू में उसका इंटरेस्ट रहता है। जैसे गुजराती में कहावत है, गुजरात जैसे बोलते हैं कि गुजराती आरंभे शुरू, तो शुरू में सब एक्साइटमेंट रहते हैं, लेकिन बाद में 1 2 3 साल के अंदर जूस निकल जाता है उसका। फिर वो पता नहीं क्या काम करता रहता है, साइड फोकस हट जाता है। लेकिन आप लगातार लगातार कंटिन्यूअसली हर दिन इतना काम करना, हर दिन 10 से 12 घंटा, आज भी आप फील्ड में हो, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं लेडी हूँ, मैं कैसे करूँ, बच्चे अकेले हैं घर पे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत एक्सक्यूज है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी मैडम। अब मैं यहाँ पर हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स या लीडर्स हैं जो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो अगर कोई है तो मैं उनको यहाँ पर चांस देता हूँ। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं डायरेक्टली। तो जो, लेकिन आपको वही पूछना है जो अब तक सवाल मैंने नहीं पूछा है और छूट गया है, ऐसे सवाल आपको पूछने हैं। और मेरा लास्ट एक क्वेश्चन आपको मैं लास्ट में करूंगा मैडम, तब तक के लिए मैं, अगर कोई है प्लीज, कोई अगर विकासिनी मैडम से बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आपका हाथ आप रेज कर सकते हैं। कोई जानकारी लेना चाहे, समय हमारे पास कम है। चलिए, साधना मैडम है यहाँ पर, तो साधना मैडम आपका वॉल्यूम अनम्यूट करके आप पूछ सकती हैं विकासिनी मैडम को। यस यस, साधना मैडम आपका वॉल्यूम अनम्यूट करिए। हेलो, आपका, हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए।
हाँ, मेरा मैम से ये सवाल था कि मतलब उन्होंने बोला कि वो मतलब पूरे फील्ड पे नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जर्नी है तो मेरी भी थी। आपका तो आवाज मैं भी बहुत क्रैक टीचर हूँ, ट्यूशन करवाती हूँ। आपका आवाज बहुत क्रैक हो रहा है, अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नेटवर्क हाँ इश्यू है सर, आप। अभी आ रही है अभी आ रही है सर आवाज? हाँ अभी आ रही है, अभी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, तो मेरा ये सर कि जैसे वो फील्ड पे निकलती है अभी फुल टाइम में, तो वैसे मैं भी टीचर हूँ, ट्यूशन क्लासेस करवाती हूँ, तो मैं भी ऐसे टाइम निकाल लेती थी, लेकिन 95 पे इतना फोकस नहीं होता था। तो मुझे उनसे बस इतना पूछना है कि वो मतलब एक दिन में 3 95 बेचते थे, तो वो मतलब कैसे करते थे, वो पूछना है उनको कि एक दिन में 3 95 वो कैसे कैसे बेचते थे। તો મેડમ સવાલ ખબર પડી તમને વિકાસની બેન? થોડે ऐसा એને એવું પૂછ્યું કે એક દિવસમાં 3 એવરેજ તમે મહિનામાં 100 વેચો 90 થી 100 તો એક દિવસથી 395 થાય, તો 195 કેવી રીતે તમે વેચી શકો છો? એક દિવસમાં 395 કેવી રીતે વેચી શકો? સર કાલે રાત્રે તો કલાકમાં જ 295 આપીને આવી. સર એમાં એવું ને કે મારું લિસ્ટ પહેલેથી તૈયાર હોય કે મારે સવારે કયા એરિયામાં જવાનું છે, કયા લોકોને મારે મળવાનું છે, અને મને એટલો વિશ્વાસ કે આને મળીશ એટલે 95 જશે જ, કારણ કે એ પહેલા એમને મેં પ્રોડક્ટ આપેલી હોય છે. આપણી ટૂથપેસ્ટ, ફેસ વોશ, સોપ, શેમ્પુ કઈ બી યુઝ કરેલું હોય સર. અને અમે મેડમે અમને જ્યારે હેલ્થ ચેક લિસ્ટ ભરવાનું કહ્યું તો હેલ્થ ચેક લિસ્ટ પર પણ મેં કામ કર્યું છે. અને એમાં પણ ખબર પડે કે સર અમને આ પ્રોબ્લેમ છે, તો આપણે સજેશન કરી શકીએ કે અમારી પાસે આ એક પ્રીમિયમ હેલ્થ ડ્રિંક છે અને આ રીતે સેલ લેવલ પર કામ કરે છે, અને 95 ના ફાયદાની મેં વાત કરું અને આ રીતે આપણી બુક બતાવું અને આ રીતે સમજાવું. અને ઘણા લોકો હું જ્યારે બેઠેલી હોય તો મારી હાજરીમાં જ સર્ચ મારીને જોઈ પણ લે છે કે ખરેખર આ છે શું. ને આ રાઈટ રાઈટ. રીતે આગળનું પ્લાનિંગ કરીને સર હું ચાલુ છું. કાલે મારે જવાનું છે તો ક્યાં જવાનું, કોને મળવાનું, કયા એરિયામાં જવાનું, એ બધું પ્લાનિંગ પ્રમાણે જ હોય કે કાલે આટલી 95 જશે, અને તે રીતે થાય જ છે સર. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो साधना मैडम आपको आंसर मालूम पड़ा? मिल गया आंसर? तो आप आपके विकासिनी बहन की और आपकी एकदम लाइफ सिमिलरिटी है आपकी, क्योंकि आप भी टीचर है, ट्यूशन करती है, वो भी टीचर थी और ट्यूशन करती थी, तो एकदम आपका और उनका मेल है। और आप भी इतना एक्साइटेड हो, आपके अंदर भी वो मैं स्पार्क, आप चिंगारी आपके अंदर भी मैंने देखी है। लिटरली आप भी विकासिनी मैडम तरह उसकी तरह आगे बढ़ सकती है, बहुत अच्छी, उनसे प्रेरणा लेकर के। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और दूसरा कोई सवाल किसी का प्लीज अगर है तो फटाफट। यस नैना पटेनवाड़िया, प्लीज नैना बेन थोड़ा जल्दी सवाल पूछो। હા નમસ્તે સર. नमस्ते। હા મારો સવાલ એ છે સર કે 1095 આપે છે તો કોઈ વાર એવું બને છે કે 1095 આપવાથી કદાચ કસ્ટમરને રિઝલ્ટ નથી મળી કે નેગેટિવ થયો હોય એવું કંઈક બની શકે ખરું મેમ? તમારો તમારો मतलब છે 10 પાઉચ? હા 10 હા પાઉચ, સોરી 10 પાઉચ. હા તો મેડમ પ્રશ્ન ગુજરાતીમાં જ પૂછ્યો તો તમને હા સર. સમજાય. હા હા સર. એવું તો મારી જોડે નથી બન્યું, કારણ કે 10 પાઉચ એટલા માટે આપ્યા કે એમને આખી 95 મોંઘી લાગતી હોય, અને કદાચ આખું બોક્સ લીધા પછી ગમે ન ગમે કે શરીરમાં સૂટ થાય ન સૂટ થાય એ પણ સામેવાળાને ડર હોય કસ્ટમરને, એટલે પણ એ લોકો આખું ન લેતા હોય. એટલે ટેસ્ટ કરવા માટે એમને કેવું છું કે તમે 10 પાઉચ લઈને જુઓ તો ખરા. અને એ 10 પાઉચ આપ્યા પછી સર આપણું એમને મળવું જરૂરી છે. 1 વીક થાય એટલે કોલ કરો, નહીં તો પર્સનલ મળી આવો. એટલે જેટલા સર આપણે લોકોના સંપર્કમાં વધારે રહીશું એટલો જ એમનો વિશ્વાસ આપણે જીતી શકીશું. राइट राइट राइट। तो मैडम का कहना है, उनका राज है 10, हाँ लेकिन इम्पोर्टेंट 10 पाउच देने के बाद आप वेट करोगे कि उनका कॉल आएगा, तो वो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। 10 जन्म लोगे, 10 जन्म के बाद भी वो कॉल नहीं करेगा। एक बात इंपॉर्टेंट बात करी विकासिनी मैडम ने कि उनको मिलना बहुत जरूरी है। 1 वीक से पहले उनको एक बार मिल के आओ और फिर एक बार वीक के बाद एक बार मिलो उनको, क्योंकि जब तक मिलोगे नहीं आगे बात बढ़ेगी नहीं, और मिलना जरूरी है। 10 पाउच दे करके आके चले आओगे उसके तरह तो फिर नहीं होगा। अगर फॉलो करना है विकासिनी मैडम को तो 100% फॉलो करना। उन्होंने रिजल्ट निकाले 10-10 पाउच देके, अगर आप में दम नहीं है निकालने का तो फिर आप किसी को भी 10 पाउच देने का हक नहीं है। अगर दिया तो फिर 10 पाउच जाएंगे, पैसा भी जाएगा। उनको 10 पाउच देने के बाद पूरा 95 देने का ताकत है उनके, तो वो एक जज्बा रखते हैं,
वो हिम्मत रखते हैं 10 पाउच लेने के बाद पैसा निकालने की उनकी टेक्निक है, और वो निकालने के लिए पहले उनका रिलेशन अच्छा बनाते हैं, फिर उनका कॉन्फिडेंस जीतते हैं, रिजल्ट लेते हैं, उससे फिर जाकर के वो उसका पूरा पैकेट फिर वो 4 महीने तक लगातार उसको हिलाते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देखा कि इतने सारे लोगों को 3-4 महीने तक प्रोडक्ट रिपीट करवाना, क्योंकि अगर रिपीट नहीं करवाते तो इतना टर्नओवर नहीं होता, आज डीटीसी नहीं होता। बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस संगीता गोयल मैडम प्लीज। હેલો, हाँ बोलो। તમે છે ને એવા તો કેવા 10-15 એવા પોઈન્ટ છે કે તમે હરેક કસ્ટમર ને કેવું છો નહીં તો એ 95 લેવા તૈયાર થઈ જાય છે. એવા 10-15 પોઈન્ટ થોડા ગ્રુપમાં પણ તમે નાખશો તો અમને બહુ હેલ્પ થશે. નહીં મેડમ, આખું આજનો આખો એના ઉપર જ છે ટોપિક, તમને હમણાં જવાબ જ આપશે, પણ આપવાની જરૂર નથી. યસ મેડમ, તમારો એમનો સવાલ છે કે કયા પોઈન્ટ છે કે જે તમે 95 ને વાત કરો છો અને લઈ લે છે. સર પહેલા 10 પાઉચ આપવા માટે એ લોકોને આપણે 95 ના ફાયદા સમજાવવાના કે તમે જે ટ્રેનિંગ આપો છો સર, હા. એ જ હું વાત કરું છું. તમે જે સમજાવ્યું છે, શીખવ્યું છે, એ જ હું રિપીટ કરું છું ત્યાં જઈને. આપણી બુક બતાવું છું અને એમ કહું છું સર કે અચાનક કોઈ મોટી બીમારી આવે અને હોસ્પિટલ જવું પડે તો રિપોર્ટ કરાવીએ તો પણ 8-10 હજાર રૂપિયા આપણા ચાલી જાય. એના કરતા બેટર છે કે આવી કોઈક પ્રોડક્ટ લઈને આપણે યુઝ કરીએ તો મોટા ખર્ચામાંથી, મોટી બીમારીમાંથી બચી જાય. અને બીજું પ્લસ પોઈન્ટ એ કે આનાથી સર કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી. તમે કોઈ પણ એલોપેથી દવા લેશો તો આપણું શરીર તેમાંથી તમારું બગડશે. એટલે સામેવાળું સર કસ્ટમર કેવું છે તે રીતે આપણે એમને સમજાવવું પડે. राइट राइट। तो संगीता मैडम, आपको समझ में आया? उनका कहना है सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज जो उन्होंने बताया उसमें से मुझे एक बात समझ में आई कि सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और इसके लिए एक बात और आगे बताई थी मैडम ने कि आपकी यानी कि मेरी जब 95 की ट्रेनिंग रहती है तो वो एकदम सीरियसली वो ट्रेनिंग आज भी इतना अचीव करने के बाद आज भी वो इतना सीरियसली वो ट्रेनिंग लेती है, वो इम्पोर्टेंट है सबसे। और कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर कैसा है, उनके हिसाब से वो बात करते हैं, फिर वो 95 देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा संगीता मैडम? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लोगों को मिलना पड़ेगा। और एक बात उन्होंने बताया कि अगले दिन से अब जो कुछ उन्होंने सीक्रेट बताया मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। उनका कहना है कि उनका अगले दिन से मालूम है, उनको अगले दिन नाइट को मालूम है कल किस किस को मिलना है, कौन से एरिया में जाना है, पूरा लिस्ट उनके पास रेडी है। जबकि हमारे पास तो ये भी मालूम नहीं है कि कल हमें किसको मिलना है। उठने के बाद भी मालूम नहीं रहता है कि मैं माय लाइफ के लिए आज कुछ काम करूंगा कि नहीं करूंगा, या करूंगी कि नहीं करूंगी, वो भी मालूम नहीं रहता है। फिर कैसे 95 सेल होगी एक महीने में? 100 क्या आप एक भी नहीं कर सकते। इतना परफेक्ट प्लानिंग मैडम का रहता है। तो मैडम ने जो भी आज अभी तक बताया, मैं कुछ रिपीट करना चाहूंगा पॉइंट, आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बनते हो। यस जंकना मैडम का एक सवाल है, चलो ले लेते हैं लास्ट में, समय हो चुका है लेकिन। यस जंकना मैडम का वॉल्यूम अनम्यूट करिए प्लीज। यस હેલો यस હેલો जंकना मैडम यस। હા મેમ હા સર ગુડ હું એવું કહેવા માંગુ છું કે જે થાઇરોઇડ ને આપી છે 995 તો 995 અને થાઇરોઇડ ની આપી એની સાથે બીજું કોઈ આપ્યું હતું અને કેટલા ટાઈમમાં એમને રિઝલ્ટ મળ્યું અને કેવું મળ્યું? તો મેડમ સવાલ એમનો છે કે 95 ની જે તમે થાઇરોઇડમાં 95 ને થાઇહેલ્થ આપી એમાં રિઝલ્ટ કેટલું મળ્યું ને કેટલા દિવસમાં મળ્યું? સર એક બેનના 75 mg ની એમની થાઇરોઇડની થાઇરોક્સિન ચાલુ હતી દવા. એમને થાઇરોઇડ માટે 95 આપી અને સાથે આપણી થાઈ હેલ્થ પણ આપી. અને જ્યારે 4 મહિના પૂરા થયા પછી એમણે રિપોર્ટ કરાવ્યો તો સર ડોક્ટરે એમને 25 mg ની દવા લખી આપી. અને આજે પણ એ બેન ડોક્ટરની દવા નથી લેતા, આપણી થાઈ હેલ્થ લે છે, પણ અઠવાડિયામાં 2-3 દિવસ લેવું પડે. એટલો બધો એમને થાઇરોઇડ ઓછો થઈ ગયો. क्या बात है। ને સર જેમને ઓછો થાઇરોઇડ હોય પહેલા હું જાણી લઉં છું કે કેટલા mg ની દવા લે છે ડોક્ટરની, થાઇરોઇડ કેટલો છે.
મેડમને હું રિપોર્ટ બતાવું છું ચેતના મેડમને, એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે એમને થાઇરોઇડ કેટલો છે, અને તે પ્રમાણે જો ઓછો હોય તો 95 થી 4 મહિને આપો એટલે એકદમ ઓછો થઈ जैसे। ओके, क्लियर मैडम? चलिए, बहुत तो थैंक यू सो मच, आपका इतना अच्छा वक्त आपने दिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा, जैसे आगे भी बताया कि विकासिनी मैडम ने आज वो कौन सी परिस्थिति से गुजर रही थी, कितने काम कर रही थी, तो आपको मालूम पड़ा अभी कि वो एक एजुकेटेड होने के बाद, इतना एजुकेशन करने के बाद आज उनको घर घर जाकर के 95 के लिए बात करना शर्म नहीं, संकोच नहीं है। इतना पढ़ी लिखी होने के बाद, वो एक टीचर होने के बावजूद टीचिंग लाइन छोड़ के वो आज फुल टाइम करके माई लाइफ में फोकस 95 के ऊपर करके उन्होंने करियर के रूप में चुना है, और साथ में आज वो फुल टाइम करने का सोचा है। ये बहुत बड़ी उनकी लाइफ में से लेसन हमें लेना चाहिए। और दोस्तों, मोस्टली जब उन्होंने शुरू किया रात के टाइम पे, यानी कि 8 बजे के बाद उन्होंने घर से जाना छोड़ा। घर छोड़ने के बाद 8 बजे के बाद उन्होंने घर छोड़ने के बाद उनका बिजनेस शुरू हुआ। ज्यादातर हम लोग हैं जो 8 बजे के बाद कभी निकलते नहीं है, तो ये डिफरेंस है हम में उसमें। और उनको जब स्पार्क हुआ, जब वाई क्लियर हुआ, तब से लेकर के आज दिन तक उसकी बत्ती बुझी नहीं कभी। जब से उनको लगा कि बिजनेस में दम है, उस दिन से आज दिन तक लगातार जो हमारा सूत्र है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर सक्सेस पानी है तो हमें कंसिस्टेंसी, नियमितता, लगातार, रेगुलर वो काम करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कमिटमेंट तो उनको पहले दिन से उनके अंदर है, क्योंकि 3 काम एक साथ करना कोई खेल नहीं है दोस्तों, कोई बच्चों का खेल नहीं है। ना कभी उनके अंदर एक्सक्यूज आया, ना कभी उन्होंने प्रायोरिटी माई लाइफ को छोड़ा। कभी भी उनको कभी भी त्योहार, कभी उनका मैरिज, कभी उनके लिए कोई सामाजिक प्रॉब्लम, ये कुछ भी नहीं आया। बर्थडे, एनिवर्सरी कुछ नहीं नड़ा उनको सिर्फ एक प्रायोरिटी में रखा माई लाइफ, और सब कुछ कुर्बान करते चले गए। बच्चों के साथ उनको रहना चाहिए, छोटे बच्चे उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और एक बात मुझे अच्छी लगी कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। एक लेडी दोस्तों इतना स्ट्रगल करके मार्केट नेगेटिविटी को चीरते हुए आगे बढ़ सकती है, तो दोस्तों हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि उनके सक्सेस के पीछे एक और राज, उनके अपलाइन हर दिन संपर्क में है, और एक बार नहीं। अगर उनके साथ में कोई दिन उनके अपलाइन नहीं भी है, तो रात को वो उनके घर पे जाते हैं, रिपोर्टिंग देते हैं पूरा, फिर वो अपने घर पे जाते हैं, चाहे 12 क्यों नहीं बजे, 12 बजे के बाद भी, 12 बजने के बाद भी वो अपने अपलाइन के घर पे जाकर के रिपोर्टिंग दे करके फिर वो उनके अपलाइन उसको घर पे छोड़ने जाते थे। उनके लिए एक्सक्यूज था, बाइक नहीं था, चलाना आता नहीं था शुरू में, लेकिन था ना कि ये बिजनेस करना है, तो सेकंड हैंड गाड़ी कहाँ से भी उन्होंने किधर से भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, सीखी, और आज हर दिन 200 का पेट्रोल वो डालती है अंदर, फिर उनका काम होता है। हम तो खर्चा बचाने की सोचते हैं, हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि अपलाइन का गाड़ी आएगा, अपलाइन का बाइक स्कूटी आएगा तो मैं उसमें बैठ के जाऊंगी, मेरा स्कूटी में नहीं चलाऊंगी। इतनी हमारी गिरी हुई सोच है, तो फिर कहाँ से बिजनेस होगा? कभी भी उन्होंने अपलाइन का सपोर्ट लिया, सहारा लिया, लेकिन अपलाइन को दोस्तों उन्होंने कभी भी चारा नहीं बनाया। अपलाइन को कभी भी उन्होंने गलत उपयोग नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पैसा नहीं था, पैसे न होने के बावजूद उन्होंने 1 लाख का लोन करके स्टॉक खुद का किया। आपने सुना कि स्टॉक के बिना नहीं चलेगा, उनको समझ में आया। उसके पास एक्सक्यूज था, अपलाइन को बोल सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप तो जानते हो मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे घर चलाना पड़ता है। एक एक्सक्यूज नहीं दिया, कुछ भी करके 1 लाख रुपए का और 9% ब्याज पे उन्होंने पैसा उठाया, और आज वो लोन उन्होंने पेडअप कर दिया है, यानी कि आज उनके सर पे लोन नहीं है, और हर महीने का 25,000 से ज्यादा का इनकम क्रिएट कर लिया है, और 2 आईडी पे लॉयल्टी ले रही है, रैंक इनकम ले रही है लेडी। हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कमिटमेंट नहीं है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि हर दिन
उनका पहले से मालूम है, लिस्ट बना के कि मुझे कब जाना है, कहाँ जाना है, किसको मिलना है। उनके पास लिस्ट रहता है कि इन इन लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया है, अभी उनको मुझे 1-to-1 करवाने हैं। उनके पास हर किस्म का लिस्ट रहता है दोस्तों, और सही वक्त पे उन्होंने जॉब छोड़ी। ये एक बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आना, आज जो नौकरी करता है उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं माई लाइफ सर्वाइव करूंगा कि नहीं करूंगा अगर छोड़ दूंगा नौकरी। लेकिन ये हिम्मत की बात है, और उनके अपलाइन को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, और कॉन्फिडेंस देके छोड़ नहीं दिया, उनके पीछे मेहनत किया रात दिन, और आज भी उनके लिए डट के खड़े हैं। और दोस्तों उन्होंने बताया कि अब तक 672 95 बेच दिए। आप सोचिए, अब 672 करके इंटू करिए 4000, करीबन 4000, कितना होता है टर्नओवर। इतना टर्नओवर एक लेडी ने एक बाइक पे घर घर जा जा करके उन्होंने किया है। उनको शुरू में फ्रस्ट्रेशन आता था, ऐसा नहीं आता था, उनको भी रिजेक्शन आता था, लेकिन वो रिजेक्शन फ्रस्ट्रेशन को वो ओवरकम करके उन्होंने फील्ड वर्क नहीं छोड़ा, कभी भी फील्ड वर्क नहीं छोड़ा। और हर दिन आप देखिए जूम में भी उनका उतना ही अटेंडेंस होता है, यानी कि जूम में भी आज वो उतना ही बैठते हैं, और दिन के, आज भी दोस्तों दिन के 10 से 12 घंटे काम करते हैं। ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट। और जब शुरुआत करी, उनके अप्लाई ने टारगेट दिया कि हमें 1 महीने का 195 बेचना है। शुरू में नहीं होता था, लेकिन जल्द से जल्द उन्होंने पहले दूसरे महीने में ही 75 to 80 95 दूसरे तीसरे महीने से उन्होंने बेचनी शुरू कर दी थी। तो ये है कमिटमेंट, और दोस्तों ये है उनका ताकत। और उन्होंने बताया कि एक स्ट्रेटेजी डेवलप करी 10-10 पाउच देने की, लेकिन उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर वो ताकत है, उनके अंदर वो जज्बा है कि वो 10-10 पाउच लोगों को दे करके उनमें से एक पूरा 95 का पाउच देना, बेचना, और हर महीना उनको सेल करके 4 महीना पूरा उनका कोर्स पूरा करवाना, और उनमें से नए लिस्ट बढ़ाना। नए लिस्ट, क्योंकि इतना लिस्ट किसी का नहीं होता, लेकिन जो कस्टमर को प्रोडक्ट दिया है उनमें से नया लिस्ट क्रिएट करना, उनको कुछ अलग प्रोडक्ट, जिसे बताया उन्होंने कि प्रोडक्ट भी, पेस्ट भी दिया, शैम्पू साबुन भी दिया बाद में 95 के बाद। और दोस्तों रेगुलर कस्टमर के कांटेक्ट में रहते हैं। उन्होंने बताया कुछ जो उन्होंने, जो जैसे बात करते गए, मैंने भी साथ में पूरा ये एक एक पॉइंट लिखा है आज आपकी तरह, और ये हमें लिखा हुआ है, उसमें से मैं बता रहा हूँ। तो इतना अच्छा काम उन्होंने किया है, और अब तक उनका इनकम भी आपने सुना कि महीने का 25,000 से ज्यादा का इन्होंने इनकम किया है। और ज्यादातर फोकस उनका 4 महीने का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस उनको देना था। तो फ्रेंड्स उन्होंने एक राज ये भी बताया कि हेल्थ चेकलिस्ट के ऊपर उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये कुछ बातें जो उन्होंने बताई अभी, राइट, मुझे लग रहा है कि सब पॉइंट मैंने कवर कर लिया है जो उन्होंने बताया था। तो अगर ये विकासिनी बेन कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? हम हर कोई कर सकते हैं। और लास्ट बैच में भी मैं मैडम का टाइम लेकर के ये उनका इंटरव्यू लेने वाला था, लेकिन सेट नहीं हुआ। लेकिन आज एक समय आया और उन्होंने टाइम दिया, तो थैंक यू। और विदाई लेने से पहले मैं यहाँ पर उनके अपलाइन भी है अवेलेबल, तो मैं चेतना मैडम को बुलाना चाहूँगा कि मैडम, क्योंकि अगर ये अचीवमेंट उनका है तो उनके पीछे चेतना मैडम का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। तो मैडम जरा 2 मिनट आपकी भी बात में सुनना चाहूँगा कि विकासिनी मैडम को जीरो से यहाँ तक आपने पहुँचाया है। और मुझे सुना है मैंने कि आपका भी हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो आपने भी हाथ में बेल्ट बांध के उनके साथ में, बारिश में भी उनके साथ में आप जाती थी और उनको यहाँ तक पहुँचाया है। तो प्लीज मैडम, उनके सक्सेस में आपका भी बहुत बड़ा अ, कारण है, आप भी बहुत बड़ा। तो कैसे किया आपने, प्लीज? जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि विकासिनी मैडम जो है तो उनका डेडिकेशन बहुत है और कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका बहुत ही बढ़िया है सर। और इनकी एक जिद थी कि मुझे कैसे भी आगे जाना है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी सर। तो फिर उनको हमें कैलकुलेशन करके देना पड़ा और हर टाइम जब भी मतलब मैं वो आती थी तो
हमें सब कुछ बताती थी, तो हमारा भी फर्ज था सर कि उनको कैसे भी हमें आगे ले जाना था। और दूसरी बात ये है सर कि सब ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है, लोन है उनके ऊपर, और दोनों बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी थी सर कि कब तक ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती, और उनको भी डिपेंडेंट नहीं रहना था। तो हमारी कई सारी बातें होती रहती थी, और उनका जो कॉन्फिडेंस था, और उनको ये दूसरी बात ये थी भी कि लक्ष्य तक पहुँचना था। तो हमारा भी कर्तव्य था सर कि हमें उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचाना था, और आगे भी पहुँचेंगी सर, क्योंकि अ, उनके अंदर भी एक जिद है, और उनको समझ में आ गया था सर कि माई लाइफ करने से मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ, और उनको डेस्टिनेशन पता चल गया था राइट, कि राइट। हम हमारे डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचेंगे। और दूसरी बात ये है सर कि आपकी ट्रेनिंग, एनडीओ और कई सारी ट्रेनिंग हम लोग भी ले चुके थे, तो सर आपका भी हमने बहुत सारा बेनिफिट उठाया है, और बहुत कुछ सीखा है सर आपसे। तो आपको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी सर। नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच। ये तो मेरा काम है और मेरा काम तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं विकासिनी मैडम और चेतना मैडम को ही स्पेशली कोई ट्रीटमेंट देता हूँ, ऐसा है नहीं। ये कॉमन है और मेरा काम है, और मेरा काम तो मैं करता रहूँगा, ईमानदारी से निभाऊँगा। लेकिन आप है कि इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग तो सबको हर कोई लेता है, लेकिन फ़ायदा उठाने वाले कुछ लोग होते हैं और जो आपने उठाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने इतने उनकी अंदर जिद है, कॉन्फिडेंस है, फॉलो करने करने की वो अच्छी फॉलोवर भी है विकासिनी मैडम। लेकिन इसके बावजूद अगर एक अच्छा अपलाइन का सपोर्ट मिल जाए तो ही आदमी ग्रो हो सकता है। और यहाँ पर आपने पूर्णतः वो साथ उनका निभाया है, और उनको फ्यूचर भी दिखाया, विजन भी दिखाया कि आपने कैलकुलेशन करके दिया कि ऐसे ऐसे आपका इनकम हो सकता है। क्योंकि किसी भी आदमी का नौकरी छुड़वाना, वो छुड़वा के वो इनकम पर पहुंचाना, आज एक लेडी महीने का 25,000 से ज्यादा का इनकम अगर माई लाइफ से सर्वाइव कर सकती है एज ए डीटीसी रैंक के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि माई लाइफ एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया है आपने कि हर किसी को माई लाइफ के ऊपर करियर बनाने के लिए कोई डाउट करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच। और हमारे जयेंद्र सर भी हैं अभी, तो उनसे भी बात करते हैं। यस सर, प्लीज। नमस्कार सर। यस, नमस्कार। सर 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। हाँ, यस। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं आपकी रॉकर ग्रुप की, ये जो कमांडो सिस्टम है उसके द्वारा ही हमारा विकास हुआ और पूरे ग्रुप का भी विकास मैं देख पा रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अपलाइन तो हमेशा रेडी रहता है डाउनलाइन को आगे बढ़ाने के लिए, और आपकी सिस्टम हम सबको एक सरखा न्याय देती है सबके लिए। आपने जैसा बोला कि हम सबके लिए अवेलेबल है, सबको ज्ञान देते हैं, पर जो आगे बढ़ना चाहेगा अपलाइन का हाथ थाम लेगा, सिस्टम का हाथ थाम लेगा, वो आगे बढ़ ही बढ़ेगा। जाएगा। और यहाँ पे बैठे हर एक लीडर, चाहे हमारे ग्रेट अपलाइन आप तो हो ही सर, सबके मतलब में गुरु प्रणेता सब आप ही हो, पर उसके बाद हमारे डायरेक्ट अपलाइन है, हमारे संतोष सर है, हमारी नवसारी टीम में जयेश भाई जुगदार है, सुहास भाई लोखंडे है, बहुत सारी महिला लीडर है, जैसे संगीता मैडम है, भावना मैडम है, शकुंतला मैडम है, गीता मैडम है। हर एक लीडर के नीचे जैसे नीरव सर हो गए, जैसे भाविक सर हो गए, जैसे मतलब में हर एक लीडर जो जो भी है, धीरेन्द्र सर है, उर्मिला मैडम है, तो हर एक जो भी लीडर आज बना है तो आपकी सिस्टम के कारण बना है। और आपकी सिस्टम का जो भी बंदा लाभ लेगा और जो भी अपलाइन को फॉलो करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। और मेरा तो एक ही स्लोगन है सर गुजराती में, मैं सबको बोलना चाहता हूं कि हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। હોશિયાર એની હોશિયારીમાં રહી જશે અને ગાંડો આગળ નીકળી જશે। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, જે बहुत માણસ बढ़िया। અહીંયા પોતાનું દિમાગ લગાવશે ને પોતાનું, તેનું પતન નિશ્ચિત છે સર। અને बिल्कुल। જે જે વ્યક્તિ અપલાઈન ને સિસ્ટમને સમર્પિત થઈ જશે તેના માટે દરવાજા ખુલ્લા જ છે, બધા જ વ્યક્તિ ડાયમંડ બનશે। તો राइट, राइट। અમારા ગ્રુપમાં જેટલા બહેનો છે અને દરેક ગ્રુપમાં જેટલા બહેનો છે બધા બહેનોને હું બે હાથ જોડીને અહીંયાથી વિનંતી કરીશ કે વિકાસીની બેનને અમે સપોર્ટ નથી કર્યો, વિકાસીની બેન અમારો સપોર્ટ લેવા માટે તૈયાર થયા ને ત્યારે અમે हाँ, એમને સપોર્ટ કરી શક્યા છે। તો राइट, राइट। એવી રીતે દરેક બહેનો અને દરેક ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને અહીંયા આગળ એક જ વિનંતી છે કે અપલાઈન તમારો હંમેશા હિત ઈચ્છે છે,
અપલાઈન તમારું હંમેશા ભલું જ કરવા ઈચ્છે છે. નિલેશ સરની રોકર્સ ગ્રુપની જે પણ ટ્રેનિંગ સિસ્ટમ છે તેને એડોપ્ટ કરો અને એક ટ્રેનિંગની અંદર જાઓ ને મેક્સિમમ લોકોને લઈ જાઓ. અને જેવી રીતે વિકાસીની બેન સિસ્ટમને સમર્પિત થયા, તમે પણ સિસ્ટમને સમર્પિત થાઓ. ભગવાન તમારી પરીક્ષા કરશે પણ સપોર્ટ પણ એટલો જ મળે છે. તો આગળ નીકળી જશો. બસ આટલું કહીને અમારી વાતને विराम આપું છું. થેન્क यू सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज। सॉरी 15 मिनट ऊपर चले गए हम, तो फिर से एक बार धन्यवाद। मुझे तो सर दिया, मैडम ने भी दिया, लेकिन धन्यवाद तो मैं विकासिनी मैडम और उनके अपलाइन को, सभी अपलाइन को देना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है और इतना अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करके आज उनका नॉलेज शेयर करने के लिए हाँ बोला, क्योंकि हर कोई नहीं होता दोस्तों। और जैसे जयेंद्र सर ने भी लास्ट में, सर आपको भी मैं बोलता हूँ कि आपने, आपके अंदर वो बड़ापन है, आपकी महानता है कि आपने क्रेडिट पूरा मुझे और सभी लीडर का एक एक नाम दे करके आपने दिया, लेकिन आपकी वो सबसे बड़ी महानता है। आपकी टीम के अंदर कोई अगर एक लेडी इतना अचीवमेंट करती है तो उसमें जो डायरेक्ट अपलाइन होते हैं उसका ही बड़ा हाथ होता है, बाकी सिस्टम कॉमन है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट में इतना बताना चाहूँगा कि जैसे अभी बात हुआ हमारा 95 के ऊपर थोड़ा नॉलेज और ये, तो मैं अगली बैच में अभी मैं अपडेट कर रहा हूँ। वैसे दे दिया है मैंने अपडेट करने के लिए, पूरी किट में अपडेट कर रहा हूँ। किट के अंदर अगली बार आपको कलरफुल 95 न्यूट्री लाइफ, डाइबा लाइफ के PDF मिलने वाला है। किट के अंदर आज आपको मैं ऑलरेडी कर दिया है, आज ही हमने कंप्लीट करके ऑर्डर दे दिया है। तो क्या क्या आपको चाहिए, आपको टूल्स क्या चाहिए, जैसे किट हम देते हैं उसके अंदर भी अपडेट कर रहे हैं। आज हम रेकॉर्ड बुक भी हमने थोड़ा नया और अच्छा इस्तेमाल मतलब अपडेट किया है। तो अगली बार आपको बहुत ही अच्छा, यानी कि आपको किधर भी कोई ढूंढना ही नहीं है। जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, डाइबा लाइफ है, न्यूट्री लाइफ है, स्पिरुलिना गोल्ड है और हमारी 95, उसका पूरा कलरफुल PDF आपको किट में मिलने वाला है। और वही रेट नहीं बढ़ेगा, चिंता मत करिएगा। 1000 से ज्यादा मैं नहीं लूंगा, उससे ऊपर कभी जाऊंगा नहीं मैं। 1000 जयेंद्र सर 1000 के अंदर भी आपको मिलेगा, वो कुछ ना कुछ मैं कॉस्ट कटिंग करके आपको दूंगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप फायदा उठाइए, आगे बढ़िए। मुझे खुशी होती है कि जब मैं इतना करता हूँ, नया नया सोचता हूँ और आप उसका फायदा उठा करके आगे बढ़ते हो, तब मुझे खुशी होती है। और कुछ लोग हैं जो जो ही के तो ही रहते हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाए तो शायद उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो आगे बढ़िए, मेहनत करिए। धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ तक आज की हमारी बात खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने आगे भी ऐसे नॉलेज देते रहते हो, आगे भी ऐसा सेशन किया था, तो आज वैसे ही 95 के बारे में इंटरेक्शन सेशन करके विकासिनी मैडम